بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم کھوسو۔ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ ایز اے مسلم ہمیں لازمی اپنے مذہب کو، اپنے دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ ٹاپک اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ اس کو یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے سی ایس ایس اور پی سی ایس کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، کہ اس ٹاپک کو کس طرح ہم ٹیکل کریں، اس کو کس طرح ہم بریک ڈاؤن کریں، کس طرح اس کے بنائیں ڈیفرنٹ ڈائمینشنز۔ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام، دین اسلام، اللہ فرماتے ہیں ان الذین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نظر میں دین اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے مذہب، دین ہے، اور جو پہلے مذہب تھے، وہ جو پہلے پرافٹ تھے، پیغمبر تھے، وہ مخصوص جگہ کے لیے اور ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھے، لیکن ہمارے دو جہاں کے سردار آپ تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک، اب کوئی نبی، کوئی اور دین مذہب نہیں ہے، صرف اسلام۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اب میں نے کہا اس کو کس طرح ہم بریک ڈاؤن کریں۔ ایک بات یاد کیجئے گا، چاہے انگلش ایسے یا کوئی اس طرح سوال، کوشچن، اس کے ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کریں کہ 5 ڈائمینشنز لازمی آپ بنائیں، 5 ڈائمینشنز لازمی آپ بنائیں۔ انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن، یہ دونوں کاؤنٹ نہیں کیے جاتے ہیں ڈائمینشن میں، جو باڈی ہے باقی اس میں آپ ایٹ لیسٹ 5 ڈائمینشنز لازمی دے دیں ان کو۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی کہ وہ چیز، وہ کوڈ، وہ رولز ریگولیشنز جو زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کریں، چاہے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، ریلیجس، ہر لحاظ سے۔ تو اسلام جو ہمارا دین ہے، نہ صرف مذہبی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، سوشلی ہر اینگل سے۔ اگر آپ اسلام کو ریئل سینس میں فالو کریں گے نا، تو تمام جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن آپ کو اسلام میں مل جائے گا۔ حقوق اللہ، رائٹس آف اللہ، اس کو میں نے یہاں پہ نمبر 3 کر دیا، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے رائٹس۔ اب شاید آپ سوچیں گے کہ بھئی اللہ کے رائٹس کون سے ہیں؟ اللہ the supreme, greatest, عظیم، اعلیٰ، انڈیپینڈنٹ، اس کے رائٹس یعنی کہ ہمارے ڈیوٹیز، ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسان کو پیدا کیا، بنایا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ تو اللہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، تمام جو انسان ہیں، جن ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے مقصد۔ تو اللہ کے بھی رائٹس ہیں جو ہمیں لازمی وہ ادا کرنے چاہیے۔ یہاں پر کیا ہے؟ 5 pillars of Islam. These are simply the rights of Almighty Allah. کلمہ، شہادہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا means no one. لا الہ، اللہ means the worthy of worship. لا الہ، there is no worthy of worship. کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی ذات۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، پیغمبر۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی کلمہ آپ لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد کیا ہے نمبر 2 پر؟ صلاۃ، پریئر، نماز لازمی ہے۔ نماز سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صوم، یعنی کہ فاسٹنگ، روزہ۔ یہ وہ عبادت ہے جو صرف بندہ جانتا ہے اور خدا جانتا ہے۔
आपको रोजा है रमजान शरीफ में, शायद आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, क्या सबूत आपको रोजा है? आप हज करें, आपको लोग देखेंगे। आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप ज़कात पे करें, आप नमाज पढ़ेंगे, आपको लोग देख सकते हैं। लेकिन रोजा वो इबादत है जो किसी को कुछ नहीं पता। आपने रोजा रखा नहीं रखा, दावा तो किया आपने, हो सकता है रोजा आपको ना हो, तो सिर्फ किसको पता है? उस बंदे को, उस शख्स को और खुदा की जात को। रोजा जबरदस्त इबादत है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, मैंने रोजे तुम पर फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। रोजा कमाल का एक इबादत है। उसके बाद क्या है? ज़कात, आर्म्स गिविंग, चैरिटी, गरीबों को जो डिजर्विंग है उनको ज़कात लाजमी आप पे करें, अगर आप पे कर सकते हैं तो। नंबर 5, हज, पिलग्रिमेज। लोग कहते हैं कि मैंने इस पीर का ज़ियारत किया, मैंने यहां पर मैं गया तो गोया मैंने हज कर दिया। नो, हज सिर्फ अरफात। हज का अलग मकाम है। ठीक है, आप कहीं पर गए, ज़ियारत आपने किए हैं, उनका सवाब मिलेगा आपको, लेकिन हज का मतलब है अरफात। अगर आप अरफात पर नहीं गए तो आपने हज नहीं किया। तो हज को कंपेयर मत करें किसी और ज़ियारत से आप, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हुकूकुल अल्लाह। जो अल्लाह के राइट्स हैं उनके क्या असरात पड़ते हैं। अगर आप कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, आप सलात, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज पढ़ते हैं आप, तो क्या फायदा होगा? अब ये एक अलग डायमेंशन है, ये अलग डायमेंशन है, ये एक अलग डायमेंशन है। तो किस तरह सवाल को ब्रेक डाउन करें, तोड़ें इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, इस चीज को लाजमी आप समझिएगा। अच्छा जी, अब मैंने कुछ यहां पे लिखे हैं, द इंपॉर्टेंस और द इंपैक्ट ऑफ हुकूकुल अल्लाह। अल्लाह के जो राइट्स हैं, अगर वो आप काम करें तो फिर क्या होगा? क्लीननेस ऑफ बॉडी इन ड्रेस, आप अपने बॉडी को, जिस्म को, कपड़ों को साफ पाक रखते हैं, क्योंकि आपको नमाज पढ़ना है, आपको रोजा रखना है, इसके लिए। पंक्चुअलिटी, देखिए नमाज अगर आप पढ़ेंगे 5 टाइम्स, यू विल बी पंक्चुअल। दुनिया के जो काम हैं आपके, आप शागिर्द हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, यकीन कीजिएगा नमाज पढ़ लिया ना आपने, बिल्कुल टाइम का पाबंद रहेंगे फिर आप लोग। तो इस्लाम न सिर्फ मजहब, दीन के हवाले से, बल्कि दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? फिजिकल फिटनेस। 5 वक्त नमाज पढ़ना, फिजिकली बहुत फिट रहते हैं, फिर ये वाक शाक जिम आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। उसके बाद क्या है? इवन रोजा रखना रमजान शरीफ में, इसको मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि बहुत बीमारियों से आपको बचाता, आपको फिट रखता है रोजा। फियर एंड अकाउंटेबिलिटी, खुदा से आप डरते हैं, अल्लाह के क्लोज हो जाते हैं आप। कब्र में, कयामत में सवाल किया जाएगा, आई विल बी अकाउंटेबल। जो मैंने गुनाह किए हैं, मैंने खराब काम किए हैं, मुझे सवाल किया जाएगा, तो लिहाजा मुझे खौफ रखना चाहिए। फियर। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। अगर यकीन कीजिएगा दिल्ली तरह से इनको फॉलो करेंगे, आप कोई भी खराब काम नहीं करेंगे, पीस को प्रमोट करेंगे, अमन को प्रमोट करेंगे। ह्यूमिलिटी, आजिजी, सिंपलिसिटी, और ये क्या है? इक्वलिटी, बराबरी। अगर आपको इक्वलिटी देखनी है, बराबरी देखनी है, इस्लाम में आप आ जाएं, दीन इस्लाम के अंदर। यहां ये क्या है? सलाह, नमाज के दौरान, नमाज में गरीब है, अमीर है, कोई काला है, गोरा है, गुलाम है, बादशाह, जो भी है, सब एक ही सिर्फ में खड़े होंगे। यहां पर अमीर, यहां पर बादशाह, यहां पर सदर, यहां वजीर आजम, उसके साइड में एक चपड़ासी, एक फार्मर, एक किसान, सब। कोई किसी को जरूरत नहीं करने के लिए कि आप पीछे आ जाओ, मैं आगे आ जाऊं। नो, किसी को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हां, अगर कोई आपको इखलाकी लिहाज से खुद कहे सर आप आगे आ जाएं, तो फिर आपकी मर्जी। यह है। आप हज को देखें, उम्रा और हज के दौरान बस एक इहराम पहनते हैं,
चाहे कोई बिलियनियर हो, एक अमीर हो, कोई भी हो, गरीब हो, फार्मर, किसान हो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक एहराम का चादर और कुछ नहीं। एवरीबॉडी इज इक्वल। अरफात के मैदान पर क्या नजारा मिलता है, लाखों लोग वहां पर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, रिवार्ड। अगर आपने अच्छे काम किए, आपके अच्छे डीड्स हैं, गुड डीड्स हैं, तो आपको सवाब मिलेगा। अगर बुरे हमारे काम हैं तो फिर उसका हमें सजा भी मिलेगा लाजमी। उसके बाद क्या है, हकूकुल इबाद, राइट्स ऑफ पीपल। लोगों के राइट्स कौन से हैं? लोगों के राइट्स कौन से हैं? राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, इस्लाम सिर्फ नहीं कहता कि बस नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कलमा पढ़ो, ज़कात, हज। ह्यूमैनिटी क्या है, इंसानियत क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इस्लाम ने दी हैं आपको। वेल, चिल्ड्रन के राइट्स दौरे जाहलिया में, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, क्या हो रहा था वहां पर? बच्चों को, डाटर्स को जिंदा दफन करना, ये था उस वक्त। और इस्लाम ने जितने भी राइट्स इस्लाम ने वुमेन को दिए, किसी ने भी नहीं दिए। इस्लाम ने औरत को बहुत पावरफुल बनाया। वो जो आजकल दीगर राइट्स की डिमांड हो रही है ना, ये बेशर्मी है। जितने राइट्स औरत को चाहिए, इस्लाम ने दे दिए। उसके बाद क्या है, राइट्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के राइट्स, फादर के, मदर के राइट्स। राइट्स ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदार, नेबर्स, पड़ोसी। राइट्स ऑफ इवन एनिमल्स, जानवरों के साथ किस तरह सुलूक किया जाए, यह भी इस्लाम के अंदर। उसके बाद यहां पर है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आजकल कुछ कहेंगे आपको सेक्युलर मगरबी दुनिया के लोग कहते हैं कि देयर इज रिलेशन बिटवीन इस्लाम एंड टेररिज्म। उन्होंने इस्लाम को यह लेबल लगा दिया कि इस्लाम प्रमोट्स टेररिज्म एंड डिसऑर्डर। अल्लाह फरमाते हैं, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन औ फसादन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीया। अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया बगैर किसी वजह, तो गोया उसने कत्ल किया पूरी इंसानियत को। और अगर किसी ने एक जिंदगी बचाई, अगर किसी ने एक इंसान की जिंदगी बचाई, तो उसने पूरी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की जिंदगी बचाई है। यह है इस्लाम। दिस इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम प्रमोट्स ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, कोऑपरेशन, पीस। तो ये तमाम, इवन इसमें आ जाएंगे आपके सोशल राइट्स, आपके पॉलिटिकल राइट्स, आपके इकोनॉमिक राइट्स। तो ये हो गए हुकूकुल इबाद, राइट्स ऑफ पीपल। उसके बाद क्या होगा, एक और डायमेंशन लिखें इसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। हुकूकुल इबाद के क्या फायदे होंगे हमारे लिए? भाई, जब आप ये काम करेंगे तो माशरे में खुशहाली आएगी, डेवलपमेंट आ जाएगी, माशरे में जो है अमन पैदा होगा, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, यूनिटी, जस्टिस, इक्वलिटी, ये तमाम जो हैं इंपॉर्टेंस हैं हुकूकुल इबाद के। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं कि किस तरह हम सवाल को ब्रेक डाउन करें, किस तरह हम सवाल को तोड़ें डिफरेंट एंगल्स के हवाले से। तो यहां आपके पास मैंने कितने मेंशन किए हैं, आप देखें जरा, नंबर 6 लिखा मैंने यहां पर। तो आपके पास 5-6 मैंने यहां पर मेंशन किए आपके लिए डायमेंशंस। अब ये तो सिंपली मैंने एक सवाल को ब्रेक डाउन किया, यूं कहें कि बस आउटलाइन है, आप इसको पूरा ए से भी बना सकते हैं। जहां भी खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।